Hi everyone. Welcome to another podcast. And today's guest need don't need much of introduction. He is one of those rare entrepreneurs जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं सच्चा बोलते हैं. He's a true no bullshit leader. And I've known him for 10 years now, and I've seen how he has taken his brand and bootstrapped from beginning to where he is today in terms of a global force in the industry. And today in the podcast, what we can guarantee is real stories and real thought processes, and there is no sugarcoat which we will use. So I think with this, I welcome my friend Assis, co-founder of Retroworks. I think I did it. Extroverts. Yeah. Retroworks, yeah. And so Assis bhai, to start with, थोड़े अपनी जर्नी के बारे में बताओ. I know I'm seeing you for the last 10, 12 years now. I've seen your journey, most of the things what you're doing. But let us know what do you do and what is the startup do and everything. Alok, thank you. Thank you for the opportunity. Our journey, so we are a 13-year-old company now, and I've always been an entrepreneur as far as I can remember. So my first company was a telecom tech company back in 2005. And in between, I invested in a restaurant, and that resulted in the product that we do today. So 2012 is when we incorporated a company called Posist. That is the more popular name by which we are known. It is a word that we coined on point of sale systems, POS systems, billing softwares, basically. We are a restaurant specialist. Last year, 2 years back, actually, we elevated the brand from Posist to Retroworks. It has its own story. Hopefully, I'll touch upon that. But I think if I have to sum up our journey kind of starts from solving our own pain. And I divide last 13 years in four different bits. One is that we were focused on SMB restaurants in India, which is what we were. We were a small restaurant, and our relatability to small restaurant owners was highest. तो हमने सबसे पहले उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया. हिंदी इंग्लिश इज ओके, राइट? योर Yeah. सो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमने उनके लिए बनाया. विद इन फर्स्ट 4 years we basically realized that while our product was good and it was solving the right problem, but at the same time अगर हमें चेन्स के साथ काम करना है तो हमें चेन्स के बारे में जो अब पता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से 2012 to 2015, उस 3-4 साल में हमने जो नॉलेज गैदर करी उससे हमें रियलाइज हुआ कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है ना, it won't scale for large chains. It will still work. And the curse of technology is कि आप उसे पैच अप करते रहिए, जुगाड़ करते रहिए, उसे एनहांस करते रहिए, वो काम कर जाती है, वो स्केल नहीं करती है. तो हमने बेसिकली 2015 में वी redeveloped our entire platform from scratch, and this time thinking about chains as a core philosophy. कि एक 100 रेस्टोरेंट की चेन, एक 500 रेस्टोरेंट की चेन को क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, व्हाट कैन बी सॉल्व फॉर देम बियॉन्ड just the front end. Point of sale system के beyond हम क्या कर सकते हैं. And I think 2016 to 2020, our journey was largely about one, doing these mid-market and enterprise companies, 25 stores to 250 stores. And second, not only doing India, but going global. 2016-17 हम enterprises India में hit कर रहे थे, and we did fairly well. And वी ऑल्सो रियलाइज कि इंडिया में बहुत कम एंटरप्राइज चेन्स हैं. Right. जैसे कि अगर इंडिया में आप देखें 1000 से ऊपर रेस्टोरेंट कितने ब्रांड्स के होंगे, तो मैं शायद 2 से ज़्यादा नहीं गिन पाऊंगा फिलहाल. डोमिनोज बीइंग द फर्स्ट वन, एंड आई थिंक पिज़्ज़ा हट इज गोइंग टू बी द सेकंड वन. सबवे इज द थर्ड लैगिंग वन. पहुंच रहे हैं 1000 की तरफ, अभी तक 1000 नहीं हुए हैं. अगर आप किसी और मार्केट में जाएंगे इंडिया से बाहर, एंड जोग्राफिकली बहुत छोटी कंट्रीज भी ऐसी हैं जहाँ पे आपको 500 1000 स्टोर मल्टीपल चेन्स के मिल जाते हैं, तो हमें वो रियलाइजेशन हिट हुई. 2018, 2019 and 2020 we were literally playing dartboards on world map. I personally traveled 22 countries across those 3 years to meet customers, to meet prospects. मतलब ऐसा है कि वो किसी ने हमारी तरफ अगर मुस्कुरा के भी देख लिया ना एक बार, तो हम पहुंच गए वहां पे कि यार ये अगर आप प्रॉस्पेक्ट हैं तो हम उड़ के आएंगे. वी विल स्पेंड मनी, वी विल स्पेंड टाइम, बट वी वुड लव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ग्राउंड. जूम से कर सकते थे, पर वी डिसाइडेड माय वे ऑफ डूइंग इट इज ह्यूमन कनेक्शंस टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म. क्रेडिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जिंदगी में बहुत कम चांसेस मिलते हैं
बिजनेस में सीरियसनेस दिखाने के लिए। राइट। सबसे छोटा पाथ सीरियसनेस दिखाने का किसी को ये है कि आप फ्लाइट लेके उसके घर पहुंच जाए। राइट। इससे ज्यादा बड़ी शो ऑफ सीरियसनेस आप कर ही नहीं सकते गेम में अर्ली। तो वो फिलॉसफी मैं फॉलो करता हूँ, हमारी पूरी कंपनी के डीएनए में है। एंड आई थिंक 2020 कोविड वाज एन इंटरेस्टिंग वेज इन द व्हील। We found ourselves on the negative side of crisis. Of course, we were screwed. But in the good side, what was happening is कि क्लेंजिंग हो रही थी। जितने भी ऐसे बिजनेसेस थे जो हमारे कस्टमर्स थे पर वो फ्लिमजी थे, फ्रेजाइल थे, जो बेचारे क्राइसिस नहीं झेल सकते थे, वो धीरे धीरे करके वाइप आउट होने लग गए। और जितने भी एंटरप्राइज बिजनेस थे जो जिनके टुवर्ड्स हम ऑलरेडी इंक्लाइंड थे, जो हमें लगता था स्ट्रॉन्गर है, they found themselves on the positive side of crisis. Every landlord wanted to give them tax holiday. Rent holidays. Everybody was basically on their side. Employees didn't want to leave them. Customers wanted to order from them. So for us, writing was clear on the wall कि यार एंटरप्राइज बिजनेस ही राइट बिजनेस है, लॉन्जिविटी भी इनकी ही ज्यादा है, एसएमबी की बेचारों की नहीं है। सो 21 से लेकर आज 2025 आई कैन टेल यू दैट वी वर्क विद 25,000 रेस्टोरेंट्स spread across 52 countries. A large part of that happened in the last 4 years. 2020 तक शायद हम सिर्फ ग्राउंड सेट हो रहा था, 21 से 25 के बीच वो एक्सपैंड हो गया। बट जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी जहां हम खड़े हैं, दिस इज नॉट दैट हम्बल डे वन टुडे और 1% डन। इट इज लिटरल राइट। the kind of opportunities that are hitting us today or coming across, I mean, coming to us. I feel so small when I look at those opportunities that I wonder कि यार एक मिनट 13 साल से क्या कर रहे थे। So at times, and actually more often than I would appreciate, it feels like that so far what we have done was just a prep, to do what we probably can do, from here on. If I put a couple of more nuggets, we expanded the scope of the product from restaurants to larger F&B operations. So हम सिर्फ restaurants नहीं करते हैं, within the realm of restaurants हम quick service restaurants भी करते हैं, casual dines भी करते हैं, fine dines भी करते हैं, restaurant bars भी करते हैं. We also expanded the scope of this product to any food and beverage operations. So today we serve hotels for their restaurants, room service, catering, banqueting. We serve hospitals for their dietary center and for their cafes and canteens. We serve sports cities and stadiums for their concessions, for their digital ordering, on-seat ordering, self-ordering. We support food courts, जिसमें कि corporate IT, corporate office food courts भी हैं, जिसमें mall food courts भी हैं, which generally run on a revenue share with the real estate company or the mall owners. So expanded. We are about to do a cruise ship as well in a very similar way. Cruise ship के ऊपर generally all inclusive होता है, but they need to do stronger inventory control, and they have some special exclusive restaurants which are also paid even for the all inclusive guests. So जहाँ पे भी F&B operations हो, Right. our IP is quite well versed for that, and we want to stick to that lane. That's why जब हम Posist से अपनी branding को elevate कर रहे थे, we chose to call ourselves Restroworks instead of calling ourselves Google Poodle or something generic, which was also an idea कि कुछ generic रखते हैं जिससे कि आने वाले 10 साल में दोबारा ना बदलना पड़े। But हमें realize हुआ कि नहीं, we are just renewing our you know promise to the restaurant industry, and our name should ideally talk about that. But from a point of sale system, today we became a 18 product suite. तो आपके रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट रिजर्वेशन से लेकर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स, ऑर्डरिंग सिस्टम्स, वेटर ऑर्डर टेकिंग, किचन मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, all your integrations with Swiggy, Zomato, and Paytms and PhonePe. And every country that we go in has its own ecosystem of front-end ordering apps, third-party deliveries, logistics companies, loyalty programs, payment providers. So we run 500 plus integrations across the world. हर country में जाते हैं तो वहाँ का एक 10, 15, 20 companies का ecosystem होता है which you have to be integrated back. It continues to be practically bootstrapped. हमने अपनी जर्नी में 2014 में एक छोटा सा एंजल फंड रेज किया था, जब हम अपने प्लेटफॉर्म को रीराइट करने का सोच रहे थे। तो वो एंजल फंड हमने छोटा सा इसलिए लिया था कि कहीं फेल हो जाए तो बैकअप होना चाहिए। थैंकफुली इट वर्कड आउट, बट वी नेवर रेज्ड बिफोर, वी नेवर रेज्ड अगेन। तो आशीष, दो चीज है, दैट टू थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन योर जर्नी। वन इज इन 2014-15 यू काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि अगर बड़ा स्केल करना है और बड़ा गेम करना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन चेन्स समवेयर, बिकॉज चेन्स में वॉल्यूम है, चेन्स में सस्टेनेबिलिटी है, रिपीटेबिलिटी है, विच माइट नॉट बी देयर इन स्मॉल बिजनेसेस। और
स्मॉल 10, 20, 100 रेस्टोरेंट्स वाले में। तो एक एक थॉट है कि एवरी बिजनेस would take, and I was talking to someone very senior, and he said that, see, if you're lucky, you would be successful in 8 to 10 years. If you're semi lucky, okay types, you will be successful. Sorry, if you're lucky, then you will be successful in 8 to 10 years. Otherwise, 12 to 15 years, or it takes 18 to 20 years, right, to be seriously successful, right? And somewhere which I saw that COVID hit. अब दो थॉट है, अगर कोविड हिट होता है, एंड इफ यू हैव नॉट रिपाइवेटेड टू चेंज, you would have been totally dependent on those small restaurants, right? वो We would have shut down. we would have shut down. So क्या ऐसा होता है, because बहुत से businesses और entrepreneurs, they are not able to repivot, they are not able to again go to zero and then restart, go to zero and restart. So what is that game which is there, which most of the business owners not are not able to do it? I think great question. मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर करूंगा. I think and I think about it a lot, right? It's not like we have done something different. I think there are a lot of businesses out there, very good companies who have done that. यार But 90% of the companies जो don't do. वो इसलिए मरती कि वो ये नहीं करती है. हाँ, और वो नहीं कर पाएंगे कभी. That's exactly what I'm answering. See, the point is that it's not really about uh, it's not really about just repivoting. वो सिंप्लीफाइड वर्जन है. फैक्ट ये है कि आज एसएमबी बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ही डिफरेंट डीएनए चाहिए, और एंटरप्राइज बिजनेस करने के लिए एज अ कंपनी आपको डिफरेंट डीएनए चाहिए. एंड ये रियलाइजेशन करना ज्यादा मुश्किल है देन द चेंज. लॉट ऑफ Right. पीपल की चेंजिंग द एंटायर कंपनी इज ओवररेटेड. हैविंग दैट रियलाइजेशन एट द कोर इज अंडररेटेड. Right. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2015 तक जो मेरे पास टीम थी जिसने 2015 तक की जर्नी की थी, और 2012 से 2015 की जर्नी बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी. मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, कोई मुझे पैसे देना तब भी मैं 2012 से 15 की जर्नी दोबारा नहीं करना चाहूंगा. सवाल ही नहीं उठता, राइट? आई वाज लोग टेलविंड्स की बात करते हैं ना, वी वर अगेंस्ट हेडविंड्स ऑफ अ वेरी डिफरेंट काइंड. एंड वो क्या होता है कि थोड़ा ऑन्टरप्रेन्योरियल ऑप्टिमिज्म मिक्स्ड विद स्टूपिडिटी इज योर फ्रेंड. अगर हम बेवकूफ ना होते तो शायद वो जर्नी क्रॉस हो ही नहीं सकती थी. Right. यू आर वेरी फॉरेस्ट गंप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन कि आप बस भागे जा रहे हैं, Hmm. आपको कोई आइडिया नहीं है, बस आप भागे जा रहे हैं, राइट? अगर आपको अकल आ जाए तो आप बिल्कुल नहीं भागेंगे. Right. पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट 2015 तक जो मेरी टीम में लोग थे, जब हमने 2015 में गियर शिफ्ट किया और हमने बोला कि ओके वेल वी आर गोइंग टू गो एंटरप्राइज एंड वी आर गोइंग टू गो चेन्स एंड वी आर गोइंग टू रीडू आवर टेक स्टैक, आई कैन टेल यू आलोक, आई रिमेंबर आई हैड 60 people in my team. Hmm. I had to let go 40. Hmm. It was very, very painful, right? And I did not, of course, let go of all of them on day one. But मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे को मिड ऑफ 2015 में ये रियलाइजेशन बहुत हार्ड स्ट्राइक की थी कि ओ शिट, दीज पीपल विल नॉट बी एबल टू स्विच गियर्स. एंड इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग खराब थे या बेवकूफ थे. पर वो वैसे ही थे जैसे थे. मतलब वो उनका एक लेवल था, उनको उसी लेवल के लिए हायर किया गया था, उनको उसी लेवल के लिए ग्रूम किया गया था. और उनमें से बहुत सारे लोग, सी एजाइल माइंडसेट सभी का नहीं होता. इसका Hmm. ये मतलब नहीं उनमें टैलेंट नहीं है. Hmm. पर ये जरूर है कि एजिलिटी नहीं है. इट अप्लाइज टू फाउंडर्स, इट अप्लाइज टू एम्प्लॉइज, इट अप्लाइज टू एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड. सो आई थिंक हमारे लिए ज्यादा बड़ा पॉइंट ये नहीं था कि हम एसएमबी से एंटरप्राइज मूव होने की कोशिश करते हैं. हमारी ज्यादा बढ़िया मूव, एंड आई थिंक विच आई फील वेरी गुड अबाउट, इज was the realization, hey, that if we go from SMBs to enterprise, the same tech, the same product, the same systems, as in same processes, same people may not work. And we were intentional and proactive about it. And hence we started talking to our teams and also started helping them understand, hey, this is what we want out of you. Over the next 6 months, either you do this or we will have to make other arrangements. And ये धमकी नहीं है, हम आपके साथ हैं क्योंकि हम भी उसी जर्नी से गुजर रहे हैं और हमारे लिए भी ये डिफिकल्ट है. आज मैक्सिमम कंपनीज ये वाला पिवट इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज वो एसएमबी बिजनेस ना साइन करना इजी लगता है. Hmm. वो एसएमबी बिजनेस रोड पे दिखाई देता है. उसमें मैं आलोक जी से पर्सनल रैपो बना के उनको बेच सकता हूँ. आप एंटरप्राइज को पर्सनल रैपो बना के नहीं बेच सकते. देयर इज नो रिलेशनशिप दैट वर्क्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. Right. रिलेशनशिप in SMBs can land you business. Relationship in enterprises can only land you on table.
Winning the business has nothing to do with your relationship. And in case you end up winning business with the relationship, you will lose it. It won't work for very, very long. So it's a very different ball game, and maximum companies will not be able to do that because uh, another problem is कि हर किसी का टारगेट जो है ना वो बहुत ही अजीब सा है। मुझे तो 3 साल में 10,000 रेस्टोरेंट तक पहुंचना है। क्यों? क्या जल्दी है? अगर 3 साल में आप 1,000 तक पहुंच जाए तो कुछ बुरा होगा? नो नो, वी नीड टू मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। श्योर, गो अहेड, डू दैट, राइट? सो द प्रॉब्लम इज दैट when you switch gears, when you change the DNA, it also has to come with maturity that, hey, no war is going to get, done in a day. You need to really go deeper. If you need to go broad, you need to really, dig downwards. You cannot go broad by just going broad. You can't be blunt about it. You can't be blunt. You have to be, your edge has to be, very, very clear. So हम जब एंटरप्राइज बिजनेस की तरफ गए, मैं आपको बता सकता हूँ कि 2016 में हमने एंटरप्राइज शुरू किया। I can tell you and I can confess that 2019 तक भी हम अभी डिस्कवरी कर रहे थे कि what will it take to really do enterprises at scale. Don't get me wrong, 2016 to 19 successful years थे. We did very, very well. We increased our pricing of the product. We changed the pricing, we changed the people, we changed the way we sell. But I can tell you till 2019, we were still discovering every day things that we need to do to succeed in enterprise business. Right. Because अभी नया नया था सब कुछ, हर नई नई एंटरप्राइज से हम बात कर रहे थे, नए CIO से हम मिल रहे थे. We were also discovering what an enterprise wants from us, right? For example, today I can tell you that जब आप SMB business करते हैं तो आपका product is the only thing that is important. जब आप enterprise business करते हैं, serious enterprise business, if you are signing, let's say, $500,000 to $1 million, clients, your credibility, your robustness in the structure as a company, how does your optics look, what kind of people they are interacting with on your side on a day-to-day basis, how your compliances work, how your data security works, how your, how robust is your entire product infrastructure, how clear are your fallback plans designed, is what you win enterprise business on. Because वो SMB बोलता है कि अरे बता, फीचर चलेगा नहीं चलेगा, बिल निकलेगा नहीं निकलेगा, यूं ऐसा कर दोगे क्या? जूम पे प्राइस बता। हाँ, डिस्काउंट देते, राइट? ऐसा नहीं है कि एंटरप्राइज डिस्काउंट नहीं मांग रहा है, पर discount is not going to win you the business, is the point I'm making, right? So the dynamics change, quite drastically. And to sail through that, to wither through that, you need a lot of conviction in that plan. अगर आपका वो कन्विक्शन नहीं है उस प्लान में, अगर आपने SMB बिजनेस जुगाड़ से किया था, जैसे कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, अभी भी आप देखेंगे मेरी हर कभी ना कोई यूट्यूब वीडियो में मैं कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो हर कोई इस मतलब आई एम टायर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट अम्यूजेस मी. एवरीबडी बिलीव्स कि जब स्टार्टिंग करेंगे तो अपना प्रोडक्ट सस्ता देंगे और फ्री देंगे. ऐसे ही स्टार्ट होता है. एंड आई जनरली टेल एवरीवन दैट जब आप स्टार्ट करते हैं तब तो आपको 101% चार्ज करना चाहिए, क्योंकि फॉर यू seriousness of a customer and their feedback is of paramount value, especially in the early days. See, Right. today I can afford to actually give away our product for much lesser cost because I may not need somebody's feedback at a core level, because I have a lot of customers who are giving me feedback. Not true, not that I'm going to do that. But in the early days, my only friend is feedback. Right. That will only come seriously when there is serious money involved. If somebody believes your product is free, it's experimental, it's on trial, why will they give you genuine, hard, feedback that is going to improve you? So it's a misnomer. My only point is that ऐसा pivot करने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजों से गुजरना पड़ेगा जो, unless your mindset has moved first, your conviction in that pivot is very, very strong, you will not be able to traverse that journey. So what you're saying is very interesting. What you're saying is सबसे पहले you have to change your mind. Once the change happens in your mind, then only things will start happening around you, right? 100%. तो एक चीज बताओ, because many of the businesses, जब वो change होता रहता है, when you're going through that change, you are in a shift mental block, in the sense that a part of your brain is still looking at future. It has already visualized your future, that you are working with world's top 100 chains, and then you are also working with some small clients
और रेस्टोरेंट्स बिकॉज यू हैव टू सर्विस फ्यू ऑफ द क्लाइंट्स. वो जर्नी जो था, both because you were changing the DNA, and you are completely right, because we have also gone through that journey in our firm also 3 years back, wherein we said that we don't want to just work with startups, we want to work and we have to touch larger ecosystem value players. So वो जो चेंज होता है ना, वो चेंज के समय व्हाट आर द एरियाज वेयर इन यू लुक कि ये चीज पे वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट? बिकॉज उस समय क्या होता है, वन मोर पॉइंट टू दिस, यू सेड दैट 2019-20 तक you were still exploring, right? I completely understand what you are trying to say, because we as a founder, we do not get that comfort कि we have hit the bullseye. जब तक वो अंदर दिल से नहीं निकलता, यू कंटिन्यू टू एक्सप्लोर, यू कंटिन्यू कि कुछ मिसिंग है यार, कुछ मिसिंग है यार, कुछ मिसिंग है, राइट? Yeah. So, and thanks for explaining that so clearly in terms of what is required uh, to sell to enterprise vis-a-vis SMB. So वो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि when that change was happening, what was happening in your life, and how you have coped up with that. I think I don't think there's a, you know, I think it is more internal. As an entrepreneur, you're going through a lot of turmoil and excitement at the same time, right? Because as an entrepreneur, what is your fuel? चलो मैं ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करता हूँ. हाँ, अगर आप फंडेड होते और आपके बोर्ड में इन्वेस्टर्स होते, नहीं कर सकते थे क्या ये। होता? नहीं कर सकते थे ये पिवट ही नहीं कर सकते थे। ये पिवट हम इसलिए नहीं कर सकते थे कि बहुत सारे रीजन थे, एंड आई गिव यू प्रैक्टिकल आंसर फॉर दैट. दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल, because almost every year some VC conversation happened with us, and they wanted to invest, or thankfully we were not raising, but need और want तो हमें भी होती है ना, मतलब पैसा खर्चने का टैलेंट तो है हमें भी, हम भी खर्च सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है. तो every year we had a chat with some or the other VC, and only in these conversations the realization went stronger that we are not the right fit for them, they're not the right fit for us, and I'll explain why. हम SMB बिजनेस कर रहे थे. हम X प्राइस पर रेस्टोरेंट पर ईयर चार्ज कर रहे थे, विच इज वेरी लो, वेरी चीप. एंड वी आर नॉट लो प्राइस, वी आर स्टिल, दिस इज अर्ली इंडिया. सब्सक्रिप्शन बिजनेसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं 2012 में. कोई वॉलेट शॉलेट एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई नेटफ्लिक्स के पैसे नहीं दे रहा है, कोई सॉफ्टवेयर के पैसे नहीं खर्चता है. तो आई मीन व्हेन आई लुक बैक, आई फील लाइक कि मतलब हम शायद पीछे पुराने जमाने के कस्प पे थे. वो पुराना जमाना खत्म हो रहा था, राइट? 2015 के बाद का इंडिया और 2015 से पहले के इंडिया में आपस में कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल दोनों. राइट, राइट, राइट. तो जब हमने ये पिवट किया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर उस समय हमारी फनीली 2 टॉप टियर वीसी से बात चल रही थी, वी हैड 2 टर्म शीट्स. मैंने किसी एक पॉडकास्ट में बताया भी था अबाउट वी सेड नो टू द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन तो evaporated because we said no to the first one. What these guys told us, that instead of pivoting from SMB to enterprise, we should think about pivoting from SMB to super SMB. And by that, what I mean is, they said, make your product free, pricing is friction, kill the market, get 100,000 restaurants, and we'll figure out how to earn money later. ये जो थॉट है ना आशीष, वी विल लर्न हाउ टू मेक मनी लेटर, इसका असली गेम क्या है? ये क्या टोपी पहनाने के लिए है? यार ऐसा है कि ऑनेस्टली ना, ऐसे देखो आप कि जो ये वीसी है ना, ये एक फंड मैनेजर है. एलपीज ने पैसा दिया फंड में. एलपीज जो है वो सॉलिड बिजनेसेस हैं, उनके पास बहुत डिस्पोजेबल कैश है, और ये रिस्क कैपिटल है. ये ऐसा है कि ये कसिनो कैपिटल है, कि अगर मैं आपको 10 लाख रुपए देके बोलूँ, आलोक भाई कसिनो में जाइए और ये 10 लाख का 50 लाख करके आइएगा, और अगर आप मुझे कॉल बैक करके बोलें कि 5 लाख रुपया डूब गया, 5 का मैंने एफडी करा दिया, तो विल आई बी हैप्पी? आई बी लाइक, ब्रो, दिस वाज गैम्बलिंग मनी. तू मेरे को कॉल कर बोल 5 लाख और चाहिए, तू मेरे को ये मत बता 5 लाख का एफडी करा दिया, वो तो मैं भी करा सकता था. देर से कम आइडिया थोड़ी मुझे एफडी का, राइट? सो इट्स लाइक दैट. ये वीसी एक फंड मैनेजर है जिसने, जो क्लेम करता है कि उसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है.
सच नहीं हम्म, है। एंड प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज ये गैम्बलिंग मनी है, तो उसको विनर टेक्स ऑल मार्केट क्रिएट करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मोस्ट ऑफ द वीसी बिजनेसेस, hyper funded ones, most, and I'm saying 99.99% hyper funded VC businesses, you will see two things happening. One, in the name of disruption, they will disrupt the economic model in the market, which honestly is a crime. हम्म, राइट, आपने बेसिकली एक सही चलते हुए इकोनॉमिक मॉडल की ऐसी की तैसी कर दी। आपने मिडिल मैन हटाने के नाम पे वैल्यू प्रॉप ही उड़ा दिया। राइट। आपने बेसिकली डीप डिस्काउंटिंग शुरू कर दी, बिकॉज यू कैन बर्न मनी। हम्म, एंड वेरी फ्यू ऑफ दीज सो कॉल्ड डिसरप्शंस दे एक्चुअली सस्टेन। आप मुझे दिखा दो, ओटीएस आ गए दुनिया में, ट्रैवल एजेंट बंद हो गए। ट्रैवल एजेंट का बिजनेस, नंबर ऑफ ट्रैवल एजेंट्स इन इंडिया हैव ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यू या। नो। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, क्या ओटीएस खराब है? नहीं। बट पॉइंट क्या है कि ओटीएस जब तक डीप डिस्काउंटिंग कर रहे थे, तब तक हालत खराब रही, और उन्होंने ट्रैवल एजेंट्स का भी बहुत नुकसान किया। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे मार्केट सर्वाइव कर जाती है, ट्रैवल एजेंट सर्वाइव कर गए। ये जो फैला दीजिए और बिजनेस मॉडल बाद में फिगर आउट करेंगे, ये ऑलमोस्ट टोपी पहनाने वाला प्रॉब्लम है। पर ऑलमोस्ट राइट, द ओनली मेरिट दैट आई सी इन दिस कि वो गैम्बलिंग मनी ही है। आप वो पैसा लें या ना लें, वो आपका चॉइस हो सकता है। पर इकोनॉमिक मॉडल डिसरप्ट करके अगर आप कोई बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो बाद में वो बिजनेस 120% स्ट्रगल करता है। द ओनली होप दैट मोस्ट ऑफ दीज वीसी फंडेड बिजनेसेस इज kill the competition by either acquiring them or killing the economic model for a longer period of time। तो उससे फायदा क्या होता है कि 100 में से कोई एक कंपनी जो है वो अकेली रह जाती है मार्केट में, और बाद में जब आप उसके ऊपर छोटा मोटा साइड प्राइसिंग मॉडल लगाते हैं, तो वो चल जाता है। और वीसी बोलता है कि देखो, विजनरी, हमें पता था कि इवेंचुअली हो बट जाएगा, होता है क्या है कि बट वो अकेला रह के भी अकेला लॉस करता रहता है। दैट इज हाउ इट इज। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ऐसी कोई कंपनी मैं नहीं जानता हूं हम्म, भयंकर लॉस में थी अपने बिल्ड टाइम पे, और आज भयंकर प्रॉफिट में आ गई है। वेरी वेरी फ्यू। हर किसी में नुआंसेस हैं। देर आर आउटलायर्स, आउटलायर्स आर नॉट द नॉर्म। एनीबडी हु लुक्स एट एन आउटलायर एंड से, ओ देखो, ओ ये तो आज प्रॉफिट कर रहा है, आई मीन वी कैन डाइसेक्ट इट someday else, and I'm not saying anything against Oyo. My point is that it is an outlier. Ritesh has done a great maneuver, but don't forget that they went through multiple deaths, before this happened. Today, if somebody asks Ritesh, I'm sure he will have a nuanced and a better opinion of this. But I have never met even a single hyper-funded founder in India or Valley who, when I asked candidly कि यार एक चीज बता अपनी जर्नी में क्या चेंज करता, and Alok, I'm telling you 100% times I get this answer, 100%. I'm talking about successful ones, not the ones who died. उसका तो बेचारे का आंसर और खराब होता है। Everybody says, I wish I had raised less capital, राइट। right? So why do they say that? Because all of them in the hindsight look back and realize कि यार इतना कैपिटल रेज करके, इतना कैपिटल बहा के जो हमने अचीव करने की कोशिश की, उसकी कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू मिली नहीं। एंड द रिजल्ट आई फाइनली केम टू टुडे could have been achieved much, in much lesser capital. Case in point, Gaurav Munjal, very very dear friend. I'm also an early, one of the earliest angels at Unacademy. Unacademy is a great product. दे एडटेक के साथ जो भी हुआ वो हुआ, राइट। बाइजूस के साथ जो हुआ वो स्कैम था। एडटेक में जो भी लोग डूबे वो सब स्कैम ही थे। सो देर आर टू पार्ट्स, राइट। देर आर गुड एडटेक कंपनीज जिनको एडटेक में जो करेक्शन हुई उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, पर अगर प्रोडक्ट ठीक था तो वो मरे नहीं, लाइक देयर राइट। बिजनेस इज साउंड। यू सी गौरव मुंजाल्स थ्रेड yesterday, दिस इज वी आर ऑन 22 अप्रैल, आप ये जब भी रिलीज करेंगे, 21 अप्रैल को गौरव ने एक ट्वीट थ्रेड किया है। अगर आप देखेंगे अनअकैडमी के स्टैट्स, रिजल्ट्स, व्हाट गौरव इज टॉकिंग अबाउट, इट्स ब्यूटिफुल। एंड दैट एक्चुअली इज अ टेस्टमेंट टू अ गुड बिजनेस एट द कोर। आपने, they were in the same VC game, they were in the same hyper funded game, they were the one who blew money at IPL and everything else, which everybody else was doing. But if you ask today, you know
he writes in that thread that the only thing that we have learned is not to do acquisitions blindly, not to burn money blindly, but make sure that the core business is sustainable and profitable, and we are going to run it this way. That one sentence is what we are talking about. So I think to complete wrap this question, अगर हमारे बोर्ड पे कोई वीसी होता और हम फंडेड होते, तो 2015-16 में एसएमबी से पिवट करके लॉन्गर सेल साइकिल्स के एंटरप्राइज पे जाने की बजाय शॉर्टेस्ट सेल साइकिल के फ्री मॉडल पे जाते हम। हमारे साथ क्या होता, ये जानने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, पता नहीं नाम तो नहीं लेने चाहिए क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है नाम लेने का, पर मेरे अपने आई मीन इन आवर सेक्टर, टू पॉस कंपनीज विच वर वीसी फंडेड, दे डाइड, वन बिफोर कोविड, अदर वन ड्यूरिंग कोविड, और ये दोनों डाइड एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। Right. दोनों लोगों ने कहा था कि मचा दो, पेल दो, सबको फ्री दे दो, सस्ते में दे दो, डीप डिस्काउंटिंग कर दो, एक्वायर कस्टमर्स एंड वी विल सी टुमारो। देयर वाज नो टुमारो। So, अगर मैं summarize करूं, so fundraising is not a challenge. If you raise capital before you have built the right product or the right market fit, because before you have got that confidence that यार मेरा प्रोडक्ट ना डिस्काउंट पे नहीं बिकेगा, मेरा प्रोडक्ट इसलिए बिक रहा है क्योंकि, so there is a concept of रेशियो ऑफ प्राइस टू वैल्यू, राइट? मेरा जो प्राइस टू वैल्यू है ना, वो हरदम 1 से ज्यादा है, और मैं प्राइस बढ़ाऊंगा फिर भी कस्टमर मेरा प्रोडक्ट लेगा, बिकॉज माय प्रोडक्ट इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, राइट? Yep. If you reach that point and then you raise capital to scale and genuine scale, then it's fine. See, I always believed, Ashish bhai, that once you raise capital more than what you require, you get into a mindset wherein you think that you will throw money at any problem and that problem will get solved. And the challenge is that when you do not have the right unit economics, when you are still struggling with repeatability, sustainability, profitability, that model, and you're throwing money, so you don't have market fit, but you are buying IPL teams, right? That's where the challenge is, right? And that's where, But that I'll tell you one thing, right? You said a sentence that when you raise money for more than what you need, right? I think वो ना subjective है, and मैं ये entrepreneur की साइड से भी बोल रहा हूँ, ये hindsight में दिखता है सबको, ठीक है? फोरसाइट में देखना बहुत मुश्किल है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, आज आज मेरी अपनी बात करता हूँ मैं, ठीक है? आज सपोज कर लेते हैं मेरे पास, आज मैं फंड रेज करने जाता हूँ और मैं बोलता हूँ साहब मेरे को $10 मिलियन चाहिए, ये मेरा प्लान है, ठीक है? सामने से वीसी कहता है कि नहीं यार, तुम्हें तो प्लान में तुम्हें अजम्पशंस गड़बड़ है, तुमने तो ये पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन लगा ली है, तुम्हें तो ये 20 मिलियन लगेगा अगर ये इसके कुछ पार्ट्स फेल हो गए। ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा कि यार फेयर पॉइंट, राइट? बिकॉज आई वांट टू हेज एज एन एंटरप्रेन्योर। हो सकता है कोई आके बोले कि यार अगर 40 लोग हैं ना, तो अपन यही प्लान डबल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लान तुम्हारा ही है ना? तो 10 छोटा है या 40 ज्यादा है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। The point here is not that. Point is, and what I find really amusing is that, to me, raising money is because you parted with your equity. right? It is a part of me. आपने अपने घर का कमरा बेच के पैसा लिया है। आप अगर उसको रूथलेसली उड़ा रहे हो और आप बेसिक्स की केयर नहीं कर रहे हो और आप साथ में इस बात का ब्रैग कर रहे हो कि चिंता मत कर, अगला कमरा रेडी है बेचने के लिए, अगला कमरा बेचेंगे 5 गुना पे एक और आ जाएगा, इसका एक ही मतलब है कि आप खुद एज एन एंटरप्रेन्योर घर की वैल्यू नहीं करते। एंड दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर केसेस में ऐसा ही दिखेगा that entrepreneurs who are continuously raising capital, if you meet them, if you talk to them, and there are so many friends around, and I'm talking about well-meaning guys, smart people. I'm not talking about scamsters. I'm talking about like good people. Even then, their sensitivity to their own equity has gone down so badly कि वो खुद ही मान के चल रहा है कि at the day of exit, which is also far out and delusional, मेरे तो 5% ही बचेगा या 4% ही बचेगा। तो आपकी सेंसिटिविटी आपकी इक्विटी के लिए इतनी लो है
कि उसके बाद उस इक्विटी से जो पैसा आता है, आप उस पैसे को उड़ा रहे हैं। आपको Right. आपको आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे तो बिजनेस इज बाउंड टू ग्रो स्लो, Hmm. and that is where VC money and VC businesses become scammy, especially in early stages. Hmm. There are a ton of companies in the world. India में browser stack है, raised money much later in their journey, right? When their unit economics was perfect, they knew exactly throwing a dollar, they'll get five Right. back. Doing very, very well. There are companies like Innovator. There are a lot of SaaS companies I know are doing very, very well. Like for example, Girish Freshworks. Hmm. एंटायर जर्नी वॉज वेरी वेरी लीनियर। लाइक अगर आप गिरीश Right. की पूरी जर्नी देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो 2 + 2 = 4 जितना ईजी है, राइट? बिकॉज इट वाज टू लीनियर। दैट इज गिरीश इज जीनियस। एंड फ्रेश वर्क्स, चार्ज बी, देयर आर सो मेनी कंपनीज Right. who are hyper funded, a ton of money in bank, never lost basics, never lost unit economics, always knew that a dollar going in has to bring something back and so on, right? तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका वो पैसा इज स्टैंडिंग फॉर समथिंग एल्स। आप Hmm. बिना यूनिट इकोनॉमिक्स के, बिना अपनी इक्विटी की केयर किए जब वो पैसा रेज करते हैं, तो फिर आप उसी बेदर्दी से उसको बहाते हैं। और फिर आप ये सोचते रहते हैं बस अब अगला फंड रेज होगा, अब अगला फंड रेज होगा। And that becomes just a treadmill. And a lot of people I see, once they are on that treadmill, they also start preaching that being on that treadmill is the right way. ये क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चल रहा है, इसमें मेरी अगर रैक तो तेरी भी कराऊंगा। इसमें अगर आप एक चीज और भी ऐड करो जो अभी बहुत 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 पेनफुल है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, इज द एथिक्स, राइट? हाउ टू बिल्ड द बिजनेस इन द राइट वे। यहाँ पे एक मैसिव मैसिव चैलेंज दिख रहा है कि लोग फंड रेज करते हैं, और ये जो आपने बोला ना कि फंड मैनेजर्स, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर ना थोड़ा उसका डीएनए चेंज होके वो भी फंड मैनेजर बन जाता है। उसको भी ये लगता है कि मेरे को अब एग्जिट मारना है। उसको ये लग रहा है कि मेरे को अपने कंपनी से निकलना है, जल्दी से जल्दी निकलना है वैल्यू क्रिएट करके, राइट? सो कहीं ना कहीं वो डीएनए चेंज हो जाता है, बट लार्जली लास्ट पॉइंट विच वी विल डिस्कस और वो नाउ। करप्शन है यार, वो करप्शन है ना। जैसे जैसे बायजूस के केस में, मैं आपको बताता हूँ, बहुत दुख की बात है ये। एंड दिस में साउंड वर्चुअस, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। कभी कभी कोई लोग, जैसे ऐसे सर्कल्स में सब गॉसिप चल रही होती है बायजूस हो या इस टाइप की किसी कंपनी के बारे में, तो कभी ना कोई आदमी कमेंट करेगा, पर चलो उसका क्या है, वो तो अपने 100 मिलियन कमा के निकल गया। एंड आई हैव एक्चुअली आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल दैट, कि डू यू रियली मीन इट? बिकॉज इफ यू मीन इट, then I have a follow-up question. Would you like to exchange life with Baiju Ravindran today? And the guy will say, नहीं नहीं, not really. Like, फिर what are you appreciating? He said, नहीं, but वो तो आराम से दुबई में बैठे हैं, मेरे को पता लगा उन्होंने 300 मिलियन साइफन ऑफ कर लिए। I'm like, that can be news, but I'm just wondering, why are you appreciating it? Like, why are you saying that that is the right outcome? जैसे recently अभी किसी कंपनी का एग्जिट हुआ, यू नो 700 करोड़ का एग्जिट हुआ। फाउंडर्स आर डाउन टू 8%, लिक प्रेफ और ये सब कुछ करते करते आई थिंक दोनों फाउंडर्स को 25-25 करोड़ नेट मिला। तो अगेन मैं किसी से बात कर रहा था और उसने बोला, चलो नॉट बैड। देन आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक, वेल, आई डोंट वांट टू पिस ऑन देम एंड आई एम नॉट सेइंग whether it's good or bad or not, but why did you say not bad? Would you like to have 25 crore as the final outcome of 12 years of hard work, raising 600 crore in capital, with last round valuation being 1,400 crores? I said, do you understand all these numbers? मैं आपको 1,400 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी का सीईओ बना के 600 करोड़ रुपया रेज करके आपके हाथ से खर्चवा के अगर आखिरी में आपको 25 करोड़ रुपए देके डिस्ट्रेस सेल में घर भेज दूं, डू यू रियली थिंक यूल बी हैप्पी? सर हाँ, बट कुछ से ना से तो अच्छा। तो आई एम लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट यू डोंट नीड टू जस्टिफाई दिस। यू डोंट नीड टू से इट लाइक दैट, राइट? इट्स एन आउटकम. If you need to learn something from it, you should learn that it's a bad outcome. Trust me, with 50% holding, having a sound business, if they had sold it for even 250 crore, they would have not only made 125, probably they would have sold it at the right terms. They could have stayed on. They could have had some sort of
linked program to earn more later. They would have had their head high in the market. People will not call it distress sale. They will not be scarred for life. It's not about small outcome or big outcome. It's really about appreciating the scam. Criticizing the scam or appreciating outcome in the right spirit and through the right lens. That's what I have generally a problem with. And I can tell you that उसमें VCs और founders दोनों involved हैं. ऐसा नहीं है कि founders कोई दूध के धुले हैं. नहीं, दूध के दूल्हे डिसरप्शन डिसरप्शन एंड ब्रेक थिंग्स के नाम पे एथिक्स के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है. एंड बाय एथिक्स आई डोंट इवन मीन साइफनिंग ऑफ फंड्स. वो तो एक अलग ही चैप्टर है. आई थिंक एथिक्स की तो मैं बात कर रहा हूँ. हाउ डू यू डील विद योर कंपेटिटर्स? हाउ डू यू डील विद द मार्केट? हाउ डू यू डील विद योर कस्टमर्स? हाउ डू यू डील विद योर वेंडर्स? आई नो सो मेनी स्टार्टअप्स जो वेंडर्स में, कस्टमर्स में, पार्टनर्स में, एम्प्लॉयज में इतना मिसट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं that at the end of the day you are doing disservice, टू द you know, इकोसिस्टम. entire to the entire ecosystem. And it's not only about Indian startup ecosystem, it's in general. Like, why will you do that? You were supposed to be actually the better company because you feel the pain. Like, for example, a startup killing a vendor, or promising wrong or delivering short to a customer is the worst thing that could happen. आप तो disruptive थे ना यार. आप तो नई पार्टी थी. आपको तो इनकलाब लाना था. आप ही ने शॉर्ट डिलीवरी कर दी. आप ही ने ड्यूप कर लिया, है ना. तो फिर वो क्या करेगा? वो आखिरी में वो कस्टमर विल गो टू अ लार्जर कंपनी जिसको आप बेवकूफ बता रहे थे. बट दैट लार्ज कंपनी इज एटलीस्ट स्टिल मेकिंग द राइट प्रॉमिस, delivering on it, is accountable. There is a process, there is a way that a customer can actually get heard somewhere. In your case, you just got wiped out of thin air. I don't get it. But I see that VCs and founders both are together in this. Trust me, Alok, one thing that I really, feel is every time some founder does something bad or a company goes down or some shit happens, people keep talking about and keep throwing brickbats at founders. They deserve it. People should. But nobody talks about who was on the board. Nobody talks about the board members. Nobody talks about the VC funds, the celebrated ones who were on the board, who funded them, who talked about doing due diligence, who talked about, nobody talks about, big fours doing their, auditing, etc. Nobody talks about that, right? आप founder को पूरा flag दीजिए, उसकी तो गलती है ही. जब अच्छाई का क्रेडिट उसको मिलना था तो उसको जूते भी पड़ने चाहिए. पर बाकियों का क्या? उनके बारे में भी बात करनी जरूरी है. बिकॉज यू कैन नॉट बी जस्ट सेलिब्रेटिंग a VC fund or somebody on board, only for the success and the IPO that happened. They should be held accountable for every down, every fall down that happens under their watch, or else don't treat them as the benchmark of success. So the last point we will discuss now is in terms of SaaS, right? SaaS में what is your opinion? Where are we moving as an Indian, as a nation? SaaS अभी कहाँ चल रहा है इंडिया में? SaaS बहुत बढ़िया चल रहा है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन थोड़ा वो AI वाले डायरेक्शन में है कि राइट राइट. देखिए, दो चीजें हैं. पहला, anybody who tells me AI will kill SaaS, I generally tell them that SaaS and cloud-based softwares have not been able to kill legacy on-premise software yet. Is it true that 75% of softwares are still on legacy? 100%, absolutely true. 70% plus market on-prem legacy softwares are still alive, thriving, kicking. हमारे They're इकोसिस्टम में आज तक किसी ने टैली को नहीं हिला पाया. 300 और 300 मिलियन फंड रेज करके भी नहीं हिला पाया. कोई नहीं कर पाया. और मैं बोला कि वो कभी ना कभी बदलेगा. पर पॉइंट ये है कि अभी तो क्लाउड की बैटल ऑन प्रेम से खत्म नहीं हुई भाई. Anybody who tells me AI will kill SaaS, I generally laugh at them, not because I am not I'm underestimating AI's impact. All I'm saying is AI has nothing to do with SaaS. So first of all, okay, there is software, which is software. एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता था, फिर वो सॉफ्टवेयर क्लाउड पे चला गया. अब वो जो सॉफ्टवेयर क्लाउड पे चला गया है उसमें AI यूज करके रिजल्ट्स कैन बी फास्टर. ठीक है. AI इज सपोज टू लोअर द ह्यूमन एफर्ट. राइट.
assumption, and this is very, very important, assumption where people say AI will kill SaaS companies is only on one basis, which is most of the SaaS companies in the world, most, not 90%, but most, their charging model was per user. Hmm. क्योंकि चार्जिंग मॉडल पर यूजर था और एआई ह्यूमन एफर्ट को कम कर रहा है, assumption, underlying assumption ये है कि AI will basically topple the business model of per user because number of users will reduce, which is Got it. true, which Hmm. is true. But ठीक है ना, अभी पर यूजर का बिजनेस मॉडल आया था, अभी Hmm. कंजम्पशन बिजनेस मॉडल आ जाएगा, इसमें क्या है? तो एआई का सैस को किल करने से कोई लेना देना नहीं है, सैस कंपनीज ठीक चल रही है. देर इज अदर ट्रूथ टू इट विच इज 2020 21 22 में SaaS कंपनीज के पब्लिक मल्टीपल्स एज वेल एज प्राइवेट मल्टीपल्स वेंट crazy. Companies were getting funded in private markets for 48x forward revenue, which was Crazy. insane, right? Right. Now that has fallen down to 6x, 8x, 10x. I think last मैंने सबसे शानदार मैंने अगर किसी की कुछ सुना है तो 12x सुना है in recent time. वो करेक्शन है. मेरा उस पर कोई बहुत ज्यादा ओपिनियन नहीं है क्योंकि मैं उस गेम में फिलहाल तो नहीं हूँ, तो ना मैं फंड रेज कर रहा हूँ, ना मैं आईपीओ कर रहा हूँ, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा ओपिनियन नहीं दे सकता. पेडेस्ट्रियन ओपिनियन मेरा उस पर यह है कि हाँ, जब 48-50x तक आप गए थे तो थोड़ा 10x 12x भी हो सकता है. पर उन मल्टीपल्स के कम होने का एक रीजन और है. वो रीजन ये नहीं है कि आपका सैस प्ले खराब है, उसका एक रीजन ये है कि मार्केट नर्वस है, Hmm. विच इज फेयर. नो, मार्केट नर्वस इसलिए है बिकॉज किसी को समझ नहीं आ रहा है कि एआई का जो इम्पैक्ट है वो कैसे कंज्यूम होगा. आर न्यू टूल्स गोइंग टू डिसरप्ट एग्जिस्टिंग प्लेयर्स? आर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स गोइंग टू use AI to kind of retain their own customers and So and I was listening to Nandan Nilekani some time back, and he was saying that at times he feels that AI is overhyped. And he was referring to a point wherein he was saying that there are two concepts. One is prepare or maker, and the reviewer or checker. I'm just giving you a thought process from my industry. So for AI, it's easy to create something, to prepare something, but still that knowledge, the technical knowledge, which is reliable to suggest that you can actually review and give the final output from a high technical point of thought is still a challenge. And what is your view on this? And if that is the case, then is it really overhyped at this point of time? So we are in a world wherein we all are in the situation of fear of unknown. Many people are fear of unknown because we really don't know what will happen, right? honestly, Alok, I still believe that it's all bullshit. Fact ये है कि uh, I haven't seen or met any entrepreneur who is in serious business, deep in their game and deep in their domain, are worried about AI. Why will you be worried about AI? Hmm. You will look forward to it, no? You see, there is a new tool, there is a new technology, there is a new disruption, there is a new possibility. That's all. That's where it ends. Right. Right? आप उसको कैसे यूज करेंगे, आप उसमें से क्या बेनिफिट निकालेंगे, आपको वो ढूंढना है. और Hmm. वो कोई जबरदस्ती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, AI हैज अ कॉस्ट एंड Hmm. दैट कॉस्ट इज ह्यूज. Hmm. अगर आज आप मेरे को बोले कि मैं अपने प्रोडक्ट में सब जगह पे AI लगा दूं, जबरदस्ती लगा दूंगा. Hmm. हमने किया 2-3 एक्सपेरिमेंट, अभी भी कर रहे हैं. Hmm. हमने 2-3 जगह पे AI लगाया. हमने अपने कुछ कस्टमर्स को बोला कि साहब कैसा लगा, उन्होंने बोला बहुत मजा आया. Hmm. तो हमने बोला ठीक है, फिर इसके पैसे लगेंगे 3x ऑफ वॉट यू आर पेइंग राइट नाउ. उन्होंने बोला हटा लो, ये फीचर नहीं चाहिए. एंड हमने बोला कि ठीक, फेयर है, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना. जब जब इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाएगी तब बात करेंगे. विच इज हाउ इट विल बी, राइट? बिकॉज ऐसा नहीं है वो कस्टमर खराब है, ऐसा नहीं है कि हम खराब है. there is use, there is need, and there is want, and then there is economics, right? All of them have to intersect. It's a new thing in the market. What people are scared about, देखो, जो ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं और जो बहुत ज्यादा स्केयर स्केयर बता रहे हैं, आई डोंट थिंक उन सबके पास काम है. ठीक है, कोई बहुत बड़ा आदमी है जी. अब सैम ऑल्टमैन अगर कह रहा है कि एआई विल डिसरप्ट द वर्ल्ड एंड किल ऑल ऑफ यू, वेस्टेड इंटरेस्ट है. फेयर है ना, मतलब वो आदमी एआई के हाइप साइकिल के वो तो टॉप पे बोलना ही चल, पड़ेगा ये. बोलना भी पड़ेगा, और वो सही भी कह रहा है ना. सी, Hmm. उसका वर्ल्ड व्यू ठीक है. Hmm. Hmm. वर्ल्ड ऑल्सो अकर्स टू यू फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग, राइट? Hmm.
जैसे जब इलॉन मस्क बोलता है कि अगले 20 साल में मार्स पे सेटलमेंट कर देंगे क्योंकि अर्थ इनहेबिटेबल नहीं रहेगा, तो मैं नहीं समझ पाता वो क्या बोल रहा है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो। नहीं नहीं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है वो, उसका वो जहां से देख रहा है उसको मेरे से ज्यादा दिख रहा है। हाँ, तो उसको वहां से दिख रहा है वो चीज। वो तो नहीं दिख रहा है ना। मेरे पास अभी बहुत सारी और प्रॉब्लम है मेरी खुद की। जब मैं वो सॉल्व कर लूंगा तब मैं अर्थ की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। फिलहाल मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक एआई किसी को डिसरप्ट नहीं कर रहा है, एआई आपको हेल्प कर रहा है। अगर आप एआई की वजह से डिसरप्ट होने वाले हैं तो आपका धंधा वैसे भी बंद होने वाला था। राइट। एआई इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू क्लोज इट फास्टर। एआई से और कुछ नहीं होने वाला है। लार्ज बिजनेसेस में जहां पे पर यूजर प्राइसिंग थी, उन सभी को धक्का लगा है, पर परमानेंट धक्का नहीं है। People will figure out their pricing model to bridge the gap between per user to per consumption. And customers are also not ready yet. अगर true AI costs हम डाल दें आज की डेट में अपने कस्टमर पे, एनर्जी कॉस्ट, कंप्यूट कॉस्ट एक्सेट्रा, बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। तो आई फील कि सैस भी ठीक चल रहा है, एआई भी ठीक ठाक डिसरप्ट करेगा, पर एआई सैस के अगेंस्ट नहीं है। अभी ऑन प्रेम सॉफ्टवेयर की गेम बहुत स्ट्रांग है। पहले क्लाउड को वो ब्रिज करना है, फिर उसमें एआई डालना है, फिर कस्टमर्स को उस एआई को यूज करके टेंजिबल आउटपुट निकालना है, सो दैट दे कैन जस्टिफाई द कॉस्ट दैट दे आर स्पेंडिंग टू गेट दैट एआई। बहुत लंबी गेम है। जिस तरीके से सीए का बिजनेस बंद नहीं हुआ है, लॉयर का बिजनेस बंद नहीं हुआ है, एआई से क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, लोग लोग ड्राफ्टिंग इजीली कर पाएंगे, एनालिसिस इजीली कर पाएंगे। ये क्या है? यू विल बी एबल टू हायर पीपल एट मच लेसर कॉस्ट। माई व्यू इज दैट एनी टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन इन द वर्ल्ड हैज नेवर like resulted in loss of jobs. It has never resulted in businesses being shut down. It has only resulted in inefficient businesses to go out. It has resulted in high paying jobs to become low paying jobs. राइट। किसी जमाने में बैंक का कैशियर कौन होता था? सबसे सीनियर आदमी, सबसे ट्रस्टवर्दी आदमी, हाईली पेड। आज की डेट में बैंक का कैशियर कौन होता है? जूनियर लेवल, एंट्री लेवल। लोग एटीएम भी नहीं जा रहे, एटीएम भी बंद होगा। आपको पता है पायलट की सैलरी हिंदुस्तान में 2004-5 में क्या हुआ करती थी? 4 से 6 लाख रुपए महीना। 2005-6 में 4 से 6 लाख। अब बता पायलट की सैलरी आज कितनी है? 4 से 6 लाख। दैट इज वॉट हैपेंड today. Planes literally fly themselves and land themselves on its own, right? In last 20 years, what happened? पायलट की जॉब नहीं छूटी है, नंबर ऑफ प्लेन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ पायलट जॉब्स वेंट अप, बट पायलट्स बिकेम चीपर, क्योंकि अब ह्यूमन स्किल की रिक्वायरमेंट कम है, हटी नहीं है। ऑन आने वाले समय डिसीजन में मेकिंग प्लेन कम हो और बेहतर हो जाएंगे, जाएगा। पायलट और सस्ता हो जाएगा। राइट। दैट इज हाउ इट विल बी। हम्म। सब जॉब्स में ऐसा ही है। नॉलेज वर्कर्स जितने भी हैं, जो आज से कुछ साल पहले तक 30,000 रुपये महीना कमाते थे, वो आज भी 30,000 रुपये महीना कमाते हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन उनको खा गई है, क्योंकि वो जॉब करना बहुत आसान हो गया है। एआई आपका इतना ही कर पाएगा फिलहाल के लिए। बाकी आई एम और नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे नहीं पता व्हाट एम आई स्टेयरिंग इनटू। आई एम आल्सो लर्निंग एज इट इज गोइंग, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेजर प्रॉब्लम फॉर सीरियस बिजनेसेस। so you know what, we as a firm, we have started using AI a lot in terms of in the research work, in the analysis work, and the kind of benefit which we are driving now in terms of response time, in terms of creating a document, in terms of doing lot of stuff. अभी मैं तो क्या कर रहा हूँ, I have found one DR dedicated resource और उसको मैं train कर रहा हूँ, and that person is actually implementing small things. So what we are doing is internally we are trying to, so we are using AI in enhancing the knowledge, and how do we ensure that each person in the team have the same kind of knowledge which I would have. Correct. So And I that's great. It will just take, it will allow you, for example, in your case, it will allow you to hire people with lower caliber at lower cost, giving better results, right. which was difficult in the past, and that's how it should be. एक्चुअली टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? टेक्नोलॉजी ने यही तो किया है, आपके स्किल और नॉलेज वाले पार्ट को प्लग कर दिया। Right. तो एक नॉर्मल आदमी भी वो सारे फंक्शन कर पा रहा है जो पहले सिर्फ स्किल्ड आदमी कर पाता था। टेक्नोलॉजी ओवर इयर्स एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है, कुछ नया नहीं हो रहा है दुनिया में। Right.
स्पीड बढ़ रही है, कभी कभी अननोन आता है तो एकदम से लोग परेशान हो जाते हैं, बट मेरे हिसाब से ये जो एआई की सारी हाइप साइकिल है, ये भी सुपर हाइप ही है. देर इज डेफिनेटली डिसरप्शन. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट देयर. देर इज डिसरप्शन, बट ऐसा नहीं है कि देर इज अ डूम्सडे एट The द बैक. world will adjust to it. World is going to adjust to it, is adjusting to Yeah, it, and there's enough time available. I mean, आप टेक्नोलॉजी बिजनेस में हो, of course you need to be agile and right, fast enough to do that, right? अगर आप इतने स्टिफ है कि आपकी एजिलिटी अंडर क्वेश्चन है, फिर तो वैसे भी आपका मरना ही ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे हैं, है right, ना? एजिलिटी इज एनीवे, ऑलवेज देयर, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू बी हाइप, आई मीन, scared about, especially in SaaS. SaaS is doing fine. right. So with this, yeah, thanks Ashish for this. It was a lovely talking. There are a lot of interesting discussions which we had, and I think when the podcast will come out, it will really, really answer to a lot of questions and thought processes because आपके साथ बात करने में बहुत मजा आता है. The best part is that you are so upfront and you are so much on the face that you will be able to call it a day when it is. So thanks for this, and I really enjoyed it. And thanks for taking out time. And see you soon. And thanks for this. And to everyone, thanks for watching. And please do like or subscribe if you like this podcast. And Ashish, again, thank you for it. Really, really, really. Bye. Thank you. No, thank you.